مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہم سب اپنی آنکھوں بند کریں گے اور خدا ان کا شکریہ ادا کریں گے ہم سب مل کے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ایک اور وقت بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کے نام کو دھن باد کہہ سکیں۔ ہم سب اپنی زبانوں کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ زبان خدا نے ہمیں اس کی تعریف اس کی حمد کرنے کے لیے بخشی ہے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی لشکروں کے خداوند، آسمان و زمین کے خالق و مالک، دل و دل کی گہرائیوں سے جلائی بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدت موقع تجھے بخشا کہ ہم تیرے پاس سے حضوری میں آ سکیں۔ اس شام کے لیے خدا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں یہ بڑا فضل عطا کیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے خداوند اپنے گھر میں آنے میں ہماری بڑی مدد حفاظت کی۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے فضل عطا کیا کہ آج خداوند ہم تیری خوبصورت باتوں کو سن سکے، تیرے نام کو دھن باد کہہ سکے۔ تیرا شکر و جلالی پاک۔ اب جب ہم خداوند پریز اینڈ ورشپ کی طرف بڑھنے کو ہے تو خداوند تمام تیری عبادت کے سیشنز کو ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ منت کرتا ہوں اپنا قدوس جلالی ہاتھ ہم پہ رکھ تاکہ ہم روح و سچائی سے تیری عبادت تیری پرستش کرنے والے ہوں۔ مسیح ہمارے مسیح کی صلاح سے آمین۔ عبادت کے شروع میں ہم زبور 103 گائیں گے۔ لوپ میں یہ گیت موجود ہے پیج نمبر 89 میں، تو آنکھیں میری جان۔ ہم سب اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے۔ تو آنکھیں میری جان مبارک خدا ہے، تو آنکھیں میری جان مبارک خدا ہے، تیروں سے گائی ہم ہمیں رسنا ہے، تیروں سے گائی ہم ہمیں رسنا ہے، تو آنکھیں میری جان کبھی بھی نہ بھول بخشا
10 पे गीत मौजूद है, दान यहोवा यादव। हम सब इसी तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा की हुजूरी में बढ़ते हुए पूरे जोश के साथ एक गीत गाएंगे। दाएं यहोवा यारब, दाएं है तख्त तेरा, दाएं यहोवा यारब, दाएं है तख्त तेरा, वास्ते नया दे
جو ہیں اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کی حمد کرنے کے لیے دیے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جب ہم خداوند کی حضوری میں آئے تو پورے جوش کے ساتھ ہمیں اس کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. اس طرح پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے فائل میں سے کتنا آگے پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں. فائل میں ایک گیت موجود ہے. پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. سارا زمانہ گائے یہی، جے راجا یسوع جے پربھو جیو. سارا زمانہ گائے یہی، جے راجا یسوع جے پربھو جی. یہی ہمارا نعرہ رہے، یہی ہمارا نعرہ رہے. بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. دشمن زمانہ ہوتا رہے، رنج و غم کی پرواہ کسے ہو. دشمن زمانہ ہوتا رہے، رنج و غم کی پرواہ کسے، وہ ہے ہمارا ہم اس کے، وہ ہے ہمارا ہم اس کے. بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. تاریکیوں میں چلتے رہیں، جے راجا یسوع کہتے رہیں ہو. تاریکیوں میں چلتے رہیں، جے راجا یسوع کہتے رہیں، جن جن چاند بجاتے ہوئے، جن جن چاند بجاتے ہوئے. بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. یسوع کے ہوتے ڈرتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. آمین. اسی طرح ہم عبادت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں گے. رسولوں کا عقیدہ پڑھ کے. رسولوں کا عقیدہ. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پر، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، تینتیس پلاطس کی حکومت میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا،
عالم روا میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کے عالم کے بھارتے طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی رائے کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے چٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ اسی طرح ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، خاص طور پر کچھ پری ریکویسٹ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز ایلبرٹ ڈیوڈ اور بھائی علیشا ڈیوڈ کی دعا کریں گے کہ جن کو خداوند نے فضل کیا، ڈاکٹر نے ان سے کہا ہے کہ ان کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا کریں، اور سر جاوید اقبال کے لیے بھی دعا کریں گے، اور دادا جی کے لیے خاص طور پر یشو کو اپنی دعاؤں میں رکھیں گے، جسے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے نیکسٹ منتھ سرجری کے لیے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، مسیحی عقیدہ ہے کہ جہاں دو یا تین خداوند کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ خود وہاں موجود ہوتا ہے، اور اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اسے کہنے سے لنگڑے اٹھتے، اندھے بینائی پاتے ہیں۔ آج ایمان رکھیں وہ یہاں موجود ہے، آپ کی اور میری مشکلات کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ انسانی سوچ کی نظر میں ہماری سوچیں، ہماری مشکلات، ہماری بیماریاں بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے خداوند کے آگے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ وہ جاؤ جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آئے ہم سب مل کے اپنے ہونٹوں کو، اپنی آوازوں کو اس کے سامنے بلند کریں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی لشکروں کے خداوند، آسمان زمین کے خالق و مالک، دل و دل کی گہرائیوں سے جلالی باپ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت موقع تجھے بخشا، خاص طور پر خداوند تو نے مجھے فضل عطا کیا خداوند کہ آج خداوند میں تیری حضوری میں آ سکوں، تیرے نام کو خداوند دینے والا بن سکوں۔ اس حاضر جماعت کی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے لیے، اس خاندان کے لیے خدا جو آج خداوند ایک چرچ کی صورت کے سامنے موجود ہے، ان سب کی تندرستی کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو ہمیشہ اپنی برکات کے دروازے ہم پر کھلے رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو جب ہم سے پکارتے ہیں خداوند تو ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو الفا اور اومیگا ہے خداوند۔ تیرا شکر ہو کہ تو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند تو کہتا ہے کہ تیرے گناہ کلوزی کیوں نہ ہو، بے شک خداوند تیرے لہو میں ہمارے گناہوں کو دھونے کی اور ہمیں برف کی مانند صاف کرنے کی قدرت ہے باپ آسمانی۔ اس بڑے پیار اور محبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص پر یسوع مسیح تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہماری خاطر اپنی قیمتی جان کا فدیہ دیا۔ تیرے کونوں کی مار کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تو نے میری خاطر، ہم سب کی خاطر سہے۔ تیرے جسم میں چھلی ہونے کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند، کیونکہ تو نے خدا ہم سے ایسا پیار کیا ہے خداوند جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تیرا شکر ہو خداوند تیرے اس بے بہا قیمتی پیار کے لیے، تیرے لہو کے لیے جو تو نے کلوری پر ہماری خاطر بہا دیا۔ او خداوند آج میں اس جماعت کو تیرے ہاتھوں میں ان ناموں کو خداوند جو تیرے سامنے رکھے گئے ہیں، آج ان کے لیے برکت اور تندرستی کی ریکویسٹ کرتا ہوں تیرے سامنے خداوند، اپنے اختیار سے نہیں بلکہ میرا ایمان ہے خداوند کہ تو آسمان زمین کا خالق ہے، مالک ہے خداوند، تو ہمارا کریٹر گاڈ ہے خداوند۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ اس جسم میں کوئی کمی کمزوری رہ جائے؟ آج اسی گھڑی خداوند تمام تر نام جو تیرے سامنے رکھے ہیں خداوند وہ شفا پائیں اور ہم تیرے نام کی گواہی دیں۔ یشوع تیرے سے برکت چاہتا ہوں اپنے بیٹے علیشا کو چھو خداوند، او خداوند جس طرح خداوند تو جو معجزہ تو کل کرتا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ تو آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ تو کہتا ہے کہ آسمان پر جو باندھو گے تمہارے لیے بند جائے گا اور زمین پر کھولو تمہارے لیے کھل جائے گا۔ آج خداوند تیرے بیٹے علیشا کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اس کی تمام تر ٹانگوں کی کمزوری کو خداوند تو اپنے لہو سے دور کر، پر لہو اس کے جسم میں انجیکٹ کر خداوند تاکہ تمام تر بندش شریانے خداوند آج تیرے یسوع نام سے چلنے لگ جائیں باپ آسمانی۔ اس کی ٹانگوں کی کمزوری خداوند تیرے یسوع نام سے دور ہو خداوند، ڈاکٹر نہیں بلکہ تو خود موجود ہونا خداوند۔ ابھی سے خداوند ڈاکٹر کی تمام تر ٹیم کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں تاکہ جب تیرے بیٹے کی سرجری ہو تو اس بار تیرا بیٹا کامیاب ہو کے لوٹے باپ آسمانی اور تیرے گھر میں خداوند خود چل کر آئے اور ہم تیرے نام کی گواہی دیں خداوند۔ اسی طرح بھائی علیشا کے لیے برکت چاہتا ہوں، تو خداوند معجزات کا خدا ہے باپ آسمانی، اپنے بیٹے کو چھو خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ ڈاکٹر کی طرف سے خداوند جو اسے خبر ملی ہے اسے سرجری کی نیڈ نہیں ہے باپ آسمانی۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے اس کی کمزوری کو اپنے لہو سے دھو دیا ہے باپ آسمانی، باقی جو کمی کمزوری ہے باپ آسمانی اس سے بھی تو دور کر باپ آسمانی۔ اس جماعت کو ہاتھوں میں دیتا ہوں خداوند، اگر کوئی بندش میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کمزوری میں ہے، کوئی سٹریس میں ہے خداوند، تو آج تیرے لہو سے تمام تر کمی کمزوری سٹریس جاتا ہے باپ آسمانی۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے آج شام میں مہیا کیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں
خادم کے وسیلہ سے تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں آج تک خدا ہر قسم کی بیماری سے ہر قسم کی وبا سے بچایا رکھا تندرستی سی نعمت کے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا آج ہم تیری حضوری میں آئے ہیں تو منت کرتا ہوں خدا ہماری سوچوں کو خیالوں کو بدل دے خدا ہماری زندگی میں سے خدا تمام تو بیروزگاری کی لعنت کو تو دور کر خدا باقی جو بہن بھائی خدا ملک کوریا میں بیروزگار ہیں ان کے لیے بھی تجھ سے برکت چاہتا ہوں آج خدا ہر ایک کے دروازے روزگار کے خدا تیرے وسیلہ سے کھلے خدا اور جو لوگ ہمیں آن لائن سن رہے ہیں آج خدا وہ بھی خدا تیرے نام کے وسیلہ سے آج کلام کے وسیلہ سے آج کی پریزنٹ ورشپ کے وسیلہ سے برکت پائے تمام کے خدا لوگوں کو خدا جو میں آن لائن سنتے ہیں ان کو بھی تیرے ہاتھوں میں لیتا ہوں خدا ان کو بھی تو بڑی برکت دے خدا تاکہ آج جب تیرے کلام کا بھی ہمارے دنان پہ ہو جائے وہ سارا نہیں بلکہ 100% پھلدار ثابت ہو خدا اور اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو اور جلال دیتے رہیں خاص طور پر جب ہم خدا تیرے کلام کو سننے والے ہیں خدا تیری خدا خوبصورت باتوں کو سننے والے ہیں تو ابھی سے خدا تیرے خادم کو اور اپنے آپ کو اس کلیسیا کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں ہماری سوچوں کو بدل دلوں کو بدل تاکہ آج ہم اپنے دلوں میں سے ذہنوں میں سے تمام دماغی سوچوں کو ہٹا کر نکال کر تیرے کلام کو جگہ دے سکیں خدا تاکہ ہمارے چال چلن سے ہمارے بول چال سے خدا ہم پہچانے جائیں کہ ہم حقیقی مسیح کے پیروکار ہیں خدا قرآن جیسی وبا کے لیے بھی تجھ سے برکت چاہتا ہوں خدا تو برکت دے اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کی مدد حفاظت کر خدا اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ تیری حضوری میں بڑھتے چلے جائیں باپس ہماری تیرا شکر تیری حمدی تعریف ہو مسیح ہمارے مسیح کی صلاح سے آمین. آج کی تلاوت ہیبریوز اس کی چیپٹر 1 عبرانیوں اس کے پہلے باب کی 1 سے 2 آیت میں بہن ہینا سے دعوت ہوئی وہ کریں گے. ہمارے لیے آج کی تلاوت عبرانیوں اس کا پہلا باب اس کی پہلی 2 آیت. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور ترمہ با ترمہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو. میں دعوت دوں گا پاسٹر صاحب سے پاسٹر جاوید صاحب سے کیا ہے اور خدا کے کلام کو ہم تک شیئر کریں. آپ سے بھی بھرپور تعلیموں میں میں دعوت دوں گا پاسٹر جاوید. خدا مسیح میں آپ سب کو سلام. حضور آج ہم خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوئے ہیں آج کی عبادت کے لیے آج کے کلام کے لیے. دوران عبادت انٹرنیٹ کی کچھ مشکل ہوئی جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارے ویورز جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ڈسکنیکشن ہوا ہے ہمارا کنٹیکٹ تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. لیکن آپ سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا بہت اس میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. تو آج ہم اس وقت کلام میں سے اس حوالہ کو جو ہم نے پڑھا عبرانیوں پہلا باب اس کی ہم نے پہلی اور دوسری آیت پر ہم نے غور کیا. میں نے ایک سیریز شروع کی تھی کلام کی اور یہ روزوں سے پہلے ہم نے 14 تاریخ کو ہم نے پہلا کلام ہم نے سنا تھا اور اس میں ہم نے 14 فروری کو جو ہم نے کلام سنا تھا اس میں ہمارا موضوع تھا کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے خدا کی کیوں ضرورت ہوتی ہے. کیا موضوع تھا؟ ہمیں انسان ہوتے ہوئے خدا کی کیوں ضرورت ہوتی ہے. اور آج ہم اس کا بیچ میں روزوں کا جو ہے وہ سیزن شروع ہو گیا تو پھر ہم نے روزوں کے بارے میں کلام جو ہے اس پر غور کرنا شروع کیا. آج ہم اس سلسلے کا دوسرا حصہ جو ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ انسان ہوتے ہوئے یا مسیح ہوتے ہوئے خدا کا یہ زندہ کلام جو ہے یہ بائبل جو ہے ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے. کیوں خدا نے یہ زندہ کلام جو ہے ہمیں عطا کیا ہے, یہ بائبل خدا نے ہمیں کیوں عطا کی ہے, اس پر آج غور کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے ایک مقدس کتاب جو ہے ہمیں دی ہے. وہ کہ تمام مذاہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تمام مذاہب کے اندر ایک کتاب جو ہے وہ ضروری ہے. جس طرح ہم اسلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی قرآن پاک موجود ہے. یہودیت کے اندر یہودی مذہب کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تورا موجود ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تمام مذاہب کے اندر کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے اس کا وجود ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے جو کتاب ہمارے موضوع ہے وہ خدا کا زندہ کلام بائبل مقدس ہے. مسیحی عقیدے کے مطابق یہ خدا کا زندہ کلام ہے. آج ہم اس پر غور کریں گے کہ ہمیں مسیح ہوتے ہوئے
इस जिंदा कलाम की क्यों जरूरत होती है, और इसको गौर से सुनिएगा ताकि आप बरकत पा सकें। और जब आप खुदा के घर में आए हैं, इतनी दूर से अपना टाइम खुदा को देने के लिए आए हैं, तो कोशिश करें कलाम को पूरे तौर पर सुने और उस पर गौर करें कि खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या पैगाम लाता है और उसके मुताबिक जो है हमें अपनी जिंदगियां कैसे गुजारने की जरूरत है। ये एक अहम मौजू है कि बाइबल मुकद्दस क्यों जरूरी है, खुदा ने क्यों हमें ये बाइबल दी है, क्यों किताब मुकद्दस जो है हमें दी गई है। तो इस पर आज हम गौर करेंगे और ये क्यों जो है इसका जवाब हम खुदा के जिंदा कलाम में से तलाश करेंगे। और जो हमने पिछले पहला पैगाम हमने सुना था 14 फरवरी को, ये पहला कलाम था, और ये हमने सुना था कि खुदा जो है वो हमें उसकी जरूरत क्यों होती है। तो हमने कलाम सीखा था कि खुदा जो है वो क्रिएटर है, तख्लीककार है, उसने हमें तख्लीक किया है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत होती है कि हम उसके हाथ के बनाए हुए इंसान हैं, उसकी क्रिएशन है, उसने हमें पैदा किया है, उसने बनाया है, तख्लीक किया है, और वो हमें हमसे ज्यादा जो है हमें जानता है। खुदा जो है हमें हमसे ज्यादा जानता है, वो हमारा बचाने वाला है, हमारा कफारा देने वाला है, वो हमें बचाना चाहता है, और हमें बचाने के लिए उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीले से बचाए जाएं। पिछले इतवार को हमने ईस्टर का त्यौहार मनाया, और ये त्यौहार जो था इस बात की याद हमें कराता है कि यीशु मसीह जो है उसने हमारी खातर अपने आप को कुर्बान किया, और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आज जो हम देखते हैं कि खुदा की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि वो हमारा कफारा देने वाला है, हमें तख्लीक करने वाला है, हमें पैदा करने वाला है, इसीलिए हमें उसकी जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो प्रोवाइडर है, मुहैया करने वाला है, परवरदिगार है, क्योंकि वो हमारी सारी जरूरियात जो है उनको हम तक पहुंचाता है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारी जिंदगी में मुहैया करता है, और अगर हमें किसी चीज की एक्स्ट्रा जरूरत होती है तो फिर कलाम में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। देने वाला कौन है? खुदा बाप जो है। खुदा बेटे के नाम से जब हम दुआ मांगते हैं तो खुदा बाप जो है वो हमें देता है, अता करता है। पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमारा मुहैया करने वाला परवरदिगार क्रिएटर खुदा है, तख्लीक करने वाला खुदा है, इसलिए हमें जो है अपने आप को पूरे तौर पर जो है खुदा की तरफ रखने की जरूरत है, खुदा की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाने की जो है वो जरूरत है। फिर आज हम देखेंगे कि आज बाइबल मुकद्दस जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, उस पर आज गौर करेंगे। तो जब हम इस किताब को देखते हैं तो ये मुकद्दस किताब है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब मुकद्दस किताबों की बात होती है तो लोग इस बाइबल मुकद्दस को अक्सर अपने घरों में रखते हैं। इसको कोशिश की जाती है कि चंगी तरह कपड़े से लपेट के तेनों ऊंची जगह पर रखा जाता है, ऐसे ही। और जब कोई फादर या कोई पादरी या कोई मास्टर आ जाए तो फिर वो कहता है बाइबल खोलो, तो फिर इसको पढ़ने झाड़ने मिट्टी झाड़ के फिर उन्हें पढ़ने। ऐसे ही बाइबल मुकद्दस जो है इस पर सीखेंगे खुदा का जिंदा कलाम है, और ये जिंदा कलाम हमें इसलिए दिया गया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले तलावत भी सुनी है, और आज तलावत में हमने सीखा है। देखिए क्या लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा तरह तरह नबियों की मार्फत कलाम किया। किस तरह कलाम किया? नबियों की मार्फत। खुदा के नबी पैगंबर जो थे वो आते थे और वो लोगों के साथ कलाम करते थे, लोगों को खुदा का कलाम या पैगाम जो है वो देते थे। लेकिन आखिरी जमाना में खुदा ने अपने बेटे के जरिए से, यीशु मसीह के जरिए से खुदा अपने बेटे को दुनिया में भेजता है, और खुदा का बेटा जो है वो जब दुनिया में आता है तो फिर वो अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान करता है, वो हमसे हम कलाम होता है। और ये नया ऐलान जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की तरफ से हमें वो कलाम मिला है जो खुशखबरी का कलाम है, जो यीशु मसीह के जरिए से हमें दिया गया है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने पहले नबियों के जरिए से फिर अपने बेटे के जरिए से कलाम किया, लेकिन यीशु मसीह जब सलीब पर मरते हैं तो उन्होंने कहा तमाम हुआ, और अब हमें मजीद नबियों की पैगंबरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम जो है वो किताबी सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। हम किताबी सूरत में उसको पढ़ सकते हैं हर वक्त 24 घंटे। ये हमारे घरों के पास, हमारे घरों के अंदर मौजूद होता है, और ये जिंदा कलाम जो है हमें वही बातें सिखाता है, वही बातें बताता है जो नबियों और पैगंबरों ने दुनिया में आकर एलानिया लोगों के साथ कहीं, वही बातें इस कलाम के अंदर लिखी गई हैं। इसलिए ये खुदा का जिंदा कलाम जो है कहलाता है। आज हम इस पर गौर करेंगे कि ये नया और पुराना ड्रामा बाइबल मुकद्दस जो है दो किताबों पर मरबूत एक किताब है। इसमें दो हिस्से पाए जाते हैं, एक नया ड्रामा और एक पुराना ड्रामा। तो पहले तो इस अहदनामे को समझ लें कि पुराना अहदनामा जो है, अहदनामा या टेस्टामेंट जो है, इसका मतलब है खुदा का वादा।
क्या है इसका मतलब? खुदा का वादा। तो जब हम पुराना एहदनामा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है खुदा का पुराना वादा बनी इस्राएल कौम के साथ, और जब हम नया एहदनामा पढ़ते हैं तो ये खुदा का नया अहद है, नया प्रॉमिस है, नया खुदा का एहदनामा है, खुदा का नया वादा है, जो कि मौजूदा दौर के जेंटाइल्स जो हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, जिनको जेंटाइल्स कहते हैं, उनके लिए ये नया एहदनामा जो है दिया गया है। तो ये मुकम्मल किताब जो होती है, जिन पुराना और नया अहद, पुराना और नया प्रॉमिस ऑफ गॉड जो है, ये जब इकट्ठे होते हैं तो एक मुकम्मल बाइबल जो है वो तैयार होती है, और ये कलाम हमें मुकम्मल स्वरूप में दिया गया है। दोनों एहदनामे इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, पुराना एहदनामा और नया एहदनामा। अब बाइबल मुकद्दस जो है, ये इसकी अहमियत क्या है हमारी नजर में? खुदा ने क्यों ये किताब जो है अब हमें दी है, उसकी वजह मैंने पहले बयान की है कि क्योंकि अब हमारे लिए नबियों का आना जो है वो मौखर हो चुका है, खत्म हो चुका है, और कोई नबी और पैगंबर अब नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह भी खुदा का बेटा जो था, वो भी अब दुनिया में आकर आसमान पर वापस चला गया है, और ये किताब हमें दी गई है, और इस किताब को हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। बाइबल मुकद्दस जो है, ये जो खुदा की ताकत है जो कि बचाती है। बाइबल क्या है? खुदा की ताकत है। कौन सी ताकत? जो हमें बचाती है। ये वो ताकत है जो हमें बचाती है, और ये हमारे अंदर ईमान को पैदा करती है। हालेलुया! ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। बाइबल मुकद्दस हमारे अंदर ईमान को पैदा करती है। जब आप इसको पढ़ते नहीं, आप इसको लपेट कर कपड़े में अच्छी तरह तय लगाते हैं इसकी, और आप ऊपर रख देते हैं ऊंची जगह पर, और इसको कभी खोल के नहीं देखते, तो फिर ये आपके लिए बेकार है। इसलिए कि आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके अंदर ईमान की ताकत जो है वो पैदा होती है। तो इसलिए हम जो खुदा कलाम के अंदर से हवाला देखते हैं कि बगैर ईमान के जो है खुदा को पसंद आना या खुदा को खुश करना जो है वो नामुमकिन है। कलाम में लिखा है, इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को उसका बदला देता है। अगर हम ईमान नहीं रखते हैं, अगर हमारा ईमान इस किताब मुकद्दस पर नहीं है, तो फिर हमारा चर्च में जाना बेकार है, बेफजूल है। हम चर्च में जाते हैं, अपना टाइम भी देते हैं खुदा के लिए जाकर, अगर हम उसको पढ़ते नहीं हैं, ईमान नहीं लाते हैं, तो फिर ये किताब हमारे लिए बेकार है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमने हवाला पढ़ा है कि बगैर ईमान के खुदा को हम खुश नहीं कर सकते। जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो फिर हम खुदा को खुश करते हैं। तो ये ईमान कहाँ से आता है? ये ईमान जो है खुदा का कलाम जो है उसको सुनने से आता है, और बगैर ईमान के जो है हम निजात भी नहीं पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो हम निजात नहीं पा सकते हैं। यूहन्ना 8 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो कि मैं वही हूं, तो अपने गुनाहों में मरोगे। अगर हम ईमान नहीं लाते हैं तो यीशु मसीह के अल्फाज जो है ना 8 बाब की 24 आयत मैंने पढ़ी है, और कलाम में लिखा है कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो क्या करोगे? अपने गुनाहों में मरोगे। यानी जिस तरह गुनाह की मजदूरी मौत है, अगर तो यीशु हमारे लिए सलीब पर मर चुका है, उसने हमारे लिए जान दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया जो है वो माफ हो गई है। इसका मतलब ये है कि यीशु ने तो अपना काम कर दिया है, हमारा काम क्या है? यीशु पर ईमान लाना। हालेलुया! अगर हम ईमान लाते हैं तो फिर हम ईमान के वसीले से खुदा को खुश कर सकते हैं। अगर यीशु हमने सोच लिया कि यीशु मर गया, हमें खुश करने की जरूरत नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी है, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की अलामत है। हमें ईमान लाने की जरूरत है। कलाम में लिखा है कि हम बगैर ईमान के जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, उसको पसंद आना नामुमकिन है अगर हमारे अंदर ईमान मौजूद नहीं है। और ये जो खुदा का कलाम है जो हमारे अंदर ईमान को पैदा करता है। हालेलुया! आमीन। ईमान कौन पैदा करता है? खुदा का कलाम जो है ये हमारे अंदर ईमान पैदा करता है। और मैं हवाला पढ़ूंगा यहाँ से, रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से। जब हम सुनते हैं तो फिर ईमान पैदा होता है। अगर हम इसको सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, तो फिर ईमान कहाँ से पैदा होगा? फिर तो हमें पता ही इसमें लिखा क्या है। जब हम सुनते हैं कलाम को तो सुनकर ईमान पैदा होता है। ऐसे, और ईमान जो है हमारे अंदर जो है वो जब पैदा होता है तो ये मसीह के कलाम से पैदा होता है। मसीह का कलाम क्या है? ये खुदा का कलाम जो हमें
किताबी सूरत में दिया गया है। मसीह आपसे खुद आकर ज़ाती तौर पर एक से बात नहीं करता। ये किताबें मुकद्दस इसीलिए दी गई है ताकि आप इसको पढ़ें और इससे आप जो है वो रहनुमाई हासिल करें। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है किताबी सूरत में दी गई है। अब नबी और पैगंबरों का आना जो है वो खत्म हो चुका है, अब नहीं आएंगे और ना ही कोई और शख्स आएगा। यीशु अल मसीह ने अपने आखिरी जब वो सलीब पर मरता है उसने अपना काम पूरा कर दिया, तमाम हुआ का नारा लगाया। इसका मतलब है कि अब और कोई नबी और पैगंबर जो है वो नहीं आने का। अब ये किताब मुकद्दस हमारी हिदायत है, इसी से हमें चलना है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, जोर से कहिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग और रोशनी, अगर हम रोशनी और चिराग के बगैर चलते हैं तो फिर हम क्या होता है, अंधेरे में निकल जाते हैं, पूरी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम भटक जाते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम अगर हमारे पास होता है तो फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, ठीक रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि चिराग की रोशनी से हम रास्ता देखते हुए जाते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम जो है हमें दिया गया है और ये ईमान जो है सुनने से पैदा होता है। खुदा का कलाम जो है हमें बताता है कि ये ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। हम एक और मिसाल देखते हैं, यूहन्ना 20 बाब उसकी 30 और 31 में आयत लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मुझसे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब मुकद्दस में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम क्या करो, ईमान लाओ। साथ ही इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। जिंदगी कब मिलती है, जब हम ईमान लाते हैं। याद रखिएगा, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अभी हमने पहले आयत पढ़ी थी कि बगैर ईमान के हम खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं, हम खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते हैं। खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, अबदी जिंदगी को हासिल करने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें ईमान लाने की जरूरत है, और ईमान के जरिए से ही हम जो है इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर जो है ईमान को पैदा करती है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नए सिरे से पैदा होने का सबब जो है वो पैदा करती है। किसके लिए? रीजनरेशन, नए सिरे से पैदा होना, नई मखलूक बनना, न्यू क्रिएशन बनना जो है वो खुदा के कलाम ही से मुमकिन है। नए सिरे से पैदा हुए बगैर कोई खुदा की भाषा में दाखिल नहीं हो सकता। कलाम का वादा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता है वो खुदा की भाषा में दाखिल नहीं हो सकता। यूहन्ना 3 बाब उसकी हम 3 और 5 में आकर पढ़ेंगे, देखिएगा हवाला 3 बाब उसकी हम 3 से 5 में आकर पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। क्या लिखा है जी? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो उस वक्त तक खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। आगे बढ़िए। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये निकोदेमस जो है एक यहूदी शख्स है, यहूदी कौम से इसका ताल्लुक है, और ये यीशु के पास आता है रात के वक्त। कब आता है? रात के वक्त आता है। क्यों रात को आता है? क्योंकि एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा यहूदी मजहब के अंदर इसका बहुत ज्यादा असर और रसूख है लोगों के अंदर। तो ये छुपकर आता है रात को, और छुपकर यीशु के पास आकर पूछता है कि भाई मैं कैसे जो है निजात पा सकता हूँ। तो यीशु क्या कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। तो ये शख्स जो है एक अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा है, और जब यीशु के पास आता है, यीशु ने कहा कि नए सिरे से पैदा होना जो है वो जरूरी है। तो वो कहता है कि जब मैं आदमी बूढ़ा हो चुका हो तो वो कैसे दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर पैदा होकर आ सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स जो है किस तरीके से मसीह यीशु के साथ जब बात करता है तो उसकी सोच का हम अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर कि उसका ख्याल क्या है। वो समझ रहा है कि यीशु का मतलब जो है वो एक कोई भी उम्र का शख्स जो है वो दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर दोबारा पैदा होना जो है उसके बारे में सोचता है। कि जिस तरह हम आम तौर पर देखते हैं कि कोई बेबी बच्चा पैदा होता है वो समझ रहा है कि
یسوع مسیح کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دوبارہ ماں کے پیٹ میں جانا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ پیدا ہونا ہے. ایسا ہی یسوع کا مطلب یہی تھا. یسوع نے کیا کہا؟ آخری آدمی کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. پانی کا مطلب کیا ہے؟ بپتسمہ لینا. ہلیلویا. پانی کا مطلب ہے بپتسمہ لینا. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں مل جاتا ہے. ایمان رکھتے ہیں تو زور سے آمین کہیں. ہلیلویا. جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، تو پانی اور روح کی پیدائش جو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ نارمل جو انسانی طریقے کے مطابق ہم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. کوئی بھی شخص جو ہے دوبارہ ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہو نہیں سکتا. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پانی اور روح کے بغیر جو ہے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے. پانی کا مطلب ہے بپتسمہ لینا. بپتسمہ کے جب ہم لیتے ہیں تو پاک روح ہمیں انعام میں ملتا ہے. ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں. ہلیلویا. جب ہم نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے تو پاک روح انعام میں ملے گا، اور جب پاک روح ملے گا، پانی کا بپتسمہ ہو جائے گا تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. کلام میں لکھا ہے اب تم وہ نہیں بلکہ تم نئی مخلوق بن گئے ہو. کیا بن گئے ہو؟ نئی مخلوق. نیو کریشن جو ہے وہ تم بن گئے ہو. اور نئی مخلوق ہم اسی وقت بنتے ہیں جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اور خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے. ہلیلویا. یسوع کے الفاظ ہیں، میں نے نہیں کہا، یسوع کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح ایمان کا بپتسمہ لیں، پورے طور پہ ایمان رکھیں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے آیا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا، اور وہ کسی روز مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا. ہلیلویا. یہ ہمارے ایمان کی اکائی ہے. اسی کا بپتسمہ لیتے ہیں نا. یسوع نے کیا کہا تھا؟ جاؤ جا کر تمام دنیا میں میرے کلام کی منادی کرو، اور اگر کوئی ایمان لائے اسے خدا باپ، بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور دیکھو میں دنیا کا آخر تک تمہارے ساتھ. بپتسمہ کس نے دیا ہے؟ یسوع نے بیان کیا ہے کہ ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں جو نئی پیدائش جو ہے پانی اور روح اس میں شامل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نئی مخلوقات بن جاتے ہیں. اور اس سے ہمیں جو خدا کے کلام کا لازوال بیج، کیسا بیج ہے؟ لازوال. لازوال کا مطلب ہے امورٹل، جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. ایک ایسا بیج کلام میں لکھا ہے کہ جب تک گندم کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا پھل نہیں لاتا ہے. جو بیج آپ بیجتے ہیں مٹی کے اندر، وہ بیج جب تک مرتا نہیں اس سے پودا پیدا نہیں ہوتا. جب وہ بیج مرتا ہے تو پودا جو ہے وہاں سے نکلتا ہے. اگر وہ بیج نہ مرے تو پودا جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مسیح یسوع جو ہے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا لازوال بیج پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتا ہے. ہلیلویا. ہمیشہ کی زندگی لازوال ہے. یاد رکھیے گا امورٹل ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی، فنا نہیں ہونے والی، بلکہ وہ ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہماری زمینی زندگی کے سال گنے ہوئے ہیں. ہم جو انسان ہیں ہماری زندگی کے سال جو ہے وہ گنے ہوئے ہیں. کلام میں لکھا ہے زبور کتاب میں میری عمر کی حد کیا ہے؟ بالش بھر کی حد ہے میری عمر کی. کس نے لکھا ہے؟ داؤد نبی کی زبور کتاب. کتنی حد ہے ہماری؟ بالش بھر کی زندگی ہے. اس طرح کا بالش ہم ناپتے ہیں، اس طرح سے یہ ایک بالش بھر کی ہے. ہمیں نہیں پتا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بے شمار عمر کے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. کوئی بچپن میں پیدا ہوتے مر جاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا بڑا ہو کر مر جاتا ہے، کوئی 100 سال عمر پاتا ہے، کوئی 80 سال پاتا ہے. تو عمر کی حد نہیں ہے کسی کی بھی، یا موت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. ہر عمر میں جو ہے موت واجب ہے. یاد رکھیے گا. تو ہمیں جب ہم یسوع کے ساتھ مل جاتے ہیں، پاک روح کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، پانی کا اور روح کا بپتسمہ مل جاتا ہے، ہمارے اندر ایک لازوال بیج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیج جو ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتا ہے. ہلیلویا. یہ بیج جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جاتا ہے. ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ابدی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے.
اور وہی زندگی خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. اسی کے لیے یسوع قربان ہوا تھا. اگر آپ کو ابدی زندگی نہ ملتی، آپ نے 60-65 سال کی عمر پا کر مر جانا تھا، 10 سال کی عمر پا کے مر جانا تھا، 100 سال کی عمر پا کے مر جانا تھا. پھر یسوع نے صلیب پر اپنی جان کیوں دی؟ وہ تو نارمل بات تھی. ابھی بھی ہم اسی طرح مرتے ہیں، ابھی بھی ہم اس طرح مرتے ہیں، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ابدی زندگی جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی ہے. ابدی زندگی ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے کہ انہوں نے ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے. ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں. ہلیلویا. ہمیں یسوع مسیح نے صلیب پر مر کر ہمیں چن لیا ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. شفا کیا ہے ہماری شفا کیا ہے؟ بخار سے پہلا تو بخار اتر گیا، سر سے درد ٹھیک ہو گیا. یسوع نے مرنا کیا ہوا؟ ابدی زندگی کیا ہے؟ ابدی زندگی یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک لمیٹڈ عمر پاتے ہیں، ایک لمٹ کے مطابق زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن جو ابدی زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. انگریزی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں انلمیٹڈ. آپ نے بینکوں کے نام پڑھے؟ پاکستان میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ حبیب بینک. آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ انلمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ. MCB مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ. ہر بینک کے آگے لمیٹڈ لکھا ہوتا ہے. اس بینک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ بزنس نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا نام لمیٹڈ لکھا ہوتا ہے. لیکن یسوع جو آپ کو زندگی دیتا ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. خدا کا وجود ختم ہو سکتا ہے؟ خدا جب ختم نہیں ہو سکتا تو جو زندگی آپ کو وہ دے گا وہ بھی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہی وہ زندگی ہے جو دینے کے لیے یسوع آپ کو آیا تھا. اگر آپ نے ویسے ہی مر جانا تھا نارمل اور روٹین کے مطابق تو پھر یسوع کے مرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یسوع کے صلیب پر مرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں. میرے ساتھ دوبارہ کہیے، تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں. کثرت کی زندگی دینے یسوع میں آیا تھا. اسی لیے اب ہم جب ابدی زندگی حاصل کریں گے، اس دنیا سے ہم ختم تو ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن جب یسوع اپنی دوسری آمد پر آئے گا تو کلام میں لکھا ہے اس کے جو لوگ ہیں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. اور جب کوئی ہمارا عزیز مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا میں سو گیا ہے. سونے والا کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ جو شخص سوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں فلاں شخص کسی گھر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاشف کتنے؟ کاشف سوتا ہے. ایسے ہی، لیکن کاشف میں کچھ گھنٹوں کے بعد اٹھنا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ روٹین ہے، نارمل انسانی روٹین ہے کہ کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد ہم نے اٹھنا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ سو گیا. اگر کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ فلانا کونے والے گھر والے نہیں سمجھ رہے، انہوں نے والد صاحب جو وفات پا گئے. ایسے ہی اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد اٹھ جائے گا، وفات پا گئے، اس کا مطلب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. جمعے کو میں نے کلام میں یہ بتایا تھا کہ جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو قبر کے اوپر ہم سلیب رکھتے ہیں. ایسے ہی پھر اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹی ڈالتے ہیں. اس کے بعد ہم کبھی اگر توفیق زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبر کو سیمنٹ کے ساتھ پکا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے مردہ کبھی بھی اس قبر سے باہر نہیں آ سکتا. ایسے ہی اس کا مطلب ہے اس بات کی نشانی ہے قبر کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے. پھر اس کا نام لکھا رہ جاتا ہے قبر کے اوپر، باقی اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی موومنٹ جو ہے دنیا کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ابدی زندگی کا مطلب ہے کہ آپ یسوع میں جب سو جاتے ہیں، مسیح ہوتے ہوئے، مسیح ایمان کے مطابق جب آپ یسوع مسیح میں سو جاتے ہیں تو ایک امید لے کر سوتے ہیں. ہلیلویا. ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے عزیز سو گئے ہیں وہ کیا ہوگا؟ جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تو وہ اس کے ساتھ آئیں گے. ایمان رکھتا ہے تو آمین کہیں. جب یسوع دوبارہ آئے گا اپنی دوسری آمد میں تو وہ جو عزیز ہمارے سو گئے ہیں، جو مسیح یسوع میں سو چکے ہیں، وہ ایماندار ہیں، تو پھر وہ یسوع کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ زندہ حالت میں آئیں گے، کیونکہ ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں. نیند سے جاگیں گے، بیدار ہوں گے، اور یسوع کے ساتھ وہ دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے. ہم کہاں ہوں گے؟ اگر ہم زندہ ہوں گے تو کلام میں لکھا ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے. ایسے ہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے جب یسوع آئے گا. تو جو سو گئے ہیں، جو خدا یسوع مسیح میں سو گئے ہیں، وہ یسوع کے ساتھ نیچے آئیں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا
इस्तकबाल करेंगे, और यीशु हमें लेने के लिए आएगा। क्या करने आएगा यीशु हमें लेने के लिए आएगा। लेने का मतलब है ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ अबदी जिंदगी में रह सकें। जब खुदा नहीं मरेगा, जब खुदा का वजूद खत्म नहीं होगा, तो फिर इंसान जो ईमानदार होंगे उनका भी वजूद खत्म नहीं होगा। आदम को खुदा ने जब पैदा किया था तो आदम गुनाह से मुबर्रा था, उसमें गुनाह नहीं था। खुदा ने उसको गुनाह के बगैर पैदा किया था, लेकिन बाद में उसके अंदर गुनाह आ गया, और जब वो गुनाह में आता है तो फिर खुदा से जुदा हो जाता है। यीशु को इसीलिए भेजा गया था ताकि जुदाई जो है बाप और बेटे के दरमियान जो खलीज है उसको पार करने के लिए यीशु का खून जो था वो दरकार था, और यीशु के लहू बहाने से हमने शिफा पाई है, क्योंकि उसने उस गैप को खत्म कर दिया है जो बाप और बेटे के दरमियान था। मैंने पिछली दफा भी कहा था, शायद ईस्टर के मौका पर भी, कि यीशु मसीह ने जब अपने सलीबी मौत के दरमियान जब उसने अपनी जान दी तो कलाम लिखा है हैकल का पर्दा बीच में से फटकर कितने टुकड़े हुआ? 2 टुकड़े हो गया। क्यों टुकड़े हो गया? क्योंकि खुदा पहले पाक तरीन मकाम के अंदर रहता था। पाक तरीन मकाम के अंदर खुदा का वजूद होता था, उसकी हजूरी होती थी, लेकिन यीशु के मरने से, यीशु के जान देने से अब वो जुदाई जो थी, वो दूरी जो थी, अब वो खत्म हो गई है। अब कलाम में लिखा है तुम खुदा की हैकल हो और उसका रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। अब खुदा कहां पर आ गया? हमारे दिलों के अंदर आ गया। अब खुदा हैकल के अंदर मौजूद नहीं है, हैकल खत्म हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया था कि सन 76 में रोमी हुकूमत ने जो थी हैकल खत्म कर दी, बर्बाद कर दी। यीशु ने पेशगोई की थी इस पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा। अब वो हैकल सन 76 में यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो थी वो हैकल खत्म कर दी गई, और अब वो हैकल मौजूद नहीं है। अब वो पाक मकाम के अंदर जो पर्दा था जहां पर खुदा ड्वेल करता था, रहता था, वो भी खत्म हो चुका है। अब खुदा कहां है? अब हमारे दिलों के अंदर है। इसीलिए अब हमें पर्दे की जरूरत भी नहीं है, अब हमें पाक मकाम की जरूरत भी नहीं है, अब हमें हैकल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हैकल इसलिए बनाई गई थी ताकि हैकल के अंदर जानवरों का खून ज़बह करके उनको जानवरों का खून जो है खुदा की हुजूरी में चढ़ाया जाए। किस लिए? गुनाहों की माफी के लिए। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा का बर्रा है, और उसने हमारे खातिर अपने आप को कुर्बान किया, और उसी के वसीले से हम जो है वो शिफा पाते हैं। उसने मुकम्मल कुर्बानी दे दी है, और इसीलिए अब हमें मजीद कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमें मजीद हैकल की जरूरत नहीं है। हम अपने पॉइंट पर दोबारा वापस आते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है हमारे अंदर अबदी बीज को पैदा करती है, हमारे अंदर अबदी कलाम जो है उसको पैदा करती है। पहला पत्रस उसका हम देखेंगे, पहला पत्रस पहला बाब उसका 23 से 25 में आता है, जहां पर लिखा है क्योंकि तुम फानी तुम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है, और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद है। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। और ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। क्या कायम रहेगा? खुदा का कलाम कायम रहेगा। ये जिंदा कलाम जो आपको दिया गया है ये हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो अब तक रहेगा। और आपकी जिंदगियों में खुदा ने कलाम दे दिया है, आपको बाइबल की सूरत में दे दिया है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है हमें दी गई है ताकि हम इसको पढ़ें, इस कलाम को सीखें, इसके अंदर जितने भी खुदा के कलाम के अंदर बातें लिखी हैं उनको अपनी जिंदगियों में शामिल करें। ये ईमान के लिए दी गई है, ताकि इसको पढ़ने से हमारे अंदर जो है वो ईमान जो है वो पैदा होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं खुशखबरी का कलाम जो है, खुशखबरी का ऐलान जो है वो मसीह की खुशखबरी का ऐलान भी हमें यहाँ पर मिलता है। और ये पहला पत्रस उसके पहले बाब की 25वें आयत में लिखा है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा, और ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। खुदा बाप ने अपने बेटे के जरिए से कलाम जो है हम तक पहुंचाया है। और जो अंजील की खुशखबरी जो है हमें बपतिस्मा लेने के लिए पुकारती है कि हमें बपतिस्मा लेना है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पानी और रूह के बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते।
जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते हैं हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते हैं। इसीलिए बपतिस्मा लेना जो है बड़ा जरूरी है। मरकस 16 बाब उसकी हम 15-16 आयत पढ़ेंगे, सभा के साथ पढ़ेंगे। मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 15 और 16 आयत है। सोलह बाब उसकी 15-16 आयत। जिसने हवाला निकाल लिया पढ़ने। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। ये कहाँ पर लिखा है जी? मरकस की इंजील में। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। हुक्म किसने दिया बपतिस्मे का? यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, जाकर तमाम दुनिया में इस कलाम की मुनादी करो, तमाम खल्कत के सामने मुनादी करो, और जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा ले और वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। इसलिए ईमान लाना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि पानी और रूह के बगैर जो है हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हमें पानी और रूह का बपतिस्मा लेना जो है वो बड़ा जरूरी है। इस तरह हम देखते हैं अमाल की किताब के अंदर पढ़ते हैं कि दूसरा बाब उसकी 38 आयत में मुकद्दस पतरस कहता है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। जब हम रूह कुदस का बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि ये बपतिस्मा जो है ये हमें पाक करने के लिए होता है, क्लींजिंग ऑफ सिन जो है, यानी हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए है। जो हमारे मौरूसी गुनाह हैं उनको मिटाने के लिए यीशु दुनिया में आया था। आप अगर चोरी करते हैं, अगर आप दूसरों की मुखालफत करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, ये आपके गुनाह जो है ये इतने बड़े नहीं थे कि यीशु को आना पड़ा। इन गुनाहों के लिए यीशु नहीं आया था कि आप चोरी करते हैं, आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप किसी का माल खा रहे हैं, आप किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं है जिसके लिए यीशु आया था। यीशु इसलिए आया था कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। वो गुनाह जो था मौरूसी गुनाह था जो बागी अदम में किया गया था। वो आदम के गुनाह की वजह से, मौरूसी का मतलब ये होता है जो हमें पीछे से मिला होता है। बाप दादा का गुनाह जो था वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा था, मुंतकिल हो रहा था। आदम से लेकर अब तक जितने भी लोग पैदा हो चुके हैं उनके अंदर वो गुनाह मुंतकिल हो रहा था। वो मौरूसी गुनाह जो था जिसकी सजा मौत में की गई है, उससे बचाने के लिए यीशु दुनिया में आया था। उससे बचाने के लिए आया था ताकि हम उस गुनाह से तौबा करें। तो जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हमारे मौरूसी गुनाह जो है उसको मिटा दिया जाता है। फिर हम जो रोजाना गुनाह करते हैं, कितने लोग जो रोजाना गुनाह करते हैं? आमीन से जवाब दें। सारे लोग गुनाह करते हैं। कितने लोग करते हैं? सारे लोग। हर बंदा जो है गुनाह करता है। छोटे छोटे बच्चे भी गुनाह करते हैं, बड़े भी करते हैं। क्यों? हम छोटी छोटी बातों में झूठ भी बोलते हैं, हम किसी की मुखालफत भी कर लेते हैं, हम चुगली भी कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें जो है ये गुनाह में शामिल होती हैं। लेकिन ये गुनाह जो है ये माफी के काबिल गुनाह है। आप रोजाना की बुनियाद पर खुदा से माफी मांगेंगे तो आपके रोजाना गुनाह खुदा माफ कर देगा। हालेलुया, आमीन। तो वो जो मेन गुनाह था वो मौरूसी गुनाह था जिसकी वजह से यीशु को सलीब पर मरना पड़ा और उसने मरकर सारे जहां को छुड़ा लिया। हालेलुया। अब जो ईमान लाएगा वही निजात पाएगा। उसने अपना काम कर दिया है, उसने स्टेज तैयार कर दिया है। अब परफॉर्मेंस आपकी है कि आप उस स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया तो आपको अपनी जिंदगी के लिए जो है वो उसके लिए तैयारी होगी। और पाक रूह जो है बपतिस्मा के जरिए से जो है हमारी तजदीद करता है, हमें नए सिरे से पैदा करता है। जब हम यीशु के साथ पानी में डूबते हैं, बपतिस्मा कैसे होता है? जब पानी में गोता लेते हैं, नीचे जाते हैं पानी के, इसका मतलब होता है यीशु के साथ मरना। क्या होता है? यीशु के साथ, इधर ही जोर से बोलेंगे, यीशु के साथ मरना। और जब बाहर आते हैं तो यीशु के साथ जी उठना। यीशु भी कब्र से जी उठा था। मुर्दा जब कब्र से जी उठेगा तो वो उठ खड़ा होगा।
कब्र से उठेगा, और जब वो लेट जाएगा तो मतलब वो कब्र में है, वो मर चुका है कब्र के अंदर। तो हम मरते हैं और मरने के बाद पानी में से जब बाहर आते हैं फिर हम यीशु के साथ जी उठते हैं। हमारी पुरानी इंसान जो है वो खत्म हो जाती है, और कलाम में लिखा कि अब तुम पुराने नहीं बल्कि नए हो गए हो, नई क्रिएशन हो गए, न्यू क्रिएशन बन चुके हो, और तुम कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। कीमत किसने अदा की? यीशु ने अपने लहू की कीमत अदा की, अपने खून से उसने खरीदा, इसलिए हम यीशु के लहू से जो है वो पाक कर दिए जाते हैं। और हम तीतुस से खत में पढ़ते हैं 3 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश से गुसल और कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से। आपको जो निजात मिली है वो आपके कामों से नहीं मिली है, याद रखिएगा। ये नहीं कि आप बड़े अच्छे थे, आपने बड़े अच्छे काम किए थे इसलिए आपको चुना है। आपने खुदा को चुना है या खुदा ने आपको चुना है? कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो खुदा ने आपको इसलिए चुना है कि आपके काम अच्छे थे, इसलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना कि हमारे काम अच्छे थे। अगर हमारे काम अच्छे तो ले खुदा ने कहते कड़ा आसान किया, मैं तो वैसे ठीक सा, मेरे तो सारे काम ही ठीक सा, ऐसे ही है। फिर हम कामों पर फख्र करते हैं, लेकिन खुदा ने हमें गुनाह की हालत से निकाला है, हमें खुदा ने गुनाह की हालत से छुड़ाया है। इसलिए अब हम जो अपने कामों की वजह से नहीं बल्कि हम यीशु पर ईमान लाने के वसीले से बचाए गए। तो याद रखिएगा, कामों के सबब से निजात नहीं मिलेगी। इस्राएल कौम के लोग जो हैं वो अभी तक अमाल के जरिए से निजात हासिल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जितने अच्छे काम होंगे वैसे ही निजात मिलेगी। मुसलमान भाई क्या करते हैं? वो भी कामों के जरिए से निजात को तलाश करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि नेकी करो, खैरात दो, ज़कात दो, भलाई करो, आपके दर्जे जो है वो जन्नत में बुलंद होते जाएंगे। मसीहत में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। मसीहत में हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता। आपकी निजात जो है आपने नहीं खरीदी है, आपके कामों से निजात नहीं है, बल्कि यीशु के लहू से आपको निजात मिली है। जब आप ईमान में मजबूत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अच्छे काम जो है शुरू हो जाते हैं। आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है अगर पूरे ईमान के साथ खुदा के साथ चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके काम अच्छे हो जाएंगे। कामों से निजात नहीं मिली है। अगर काम से निजात होती तो फिर हम फख्र महसूस करते हैं, फिर हम कहते लोग जिसने अपने कमाने में ज्यादा हासिल की, खुदा की कमा रहे थे, ऐसे ही फिर हम अपने आप पर फख्र करते। लेकिन अब क्या है? सलीब मसीहा फख्र है हमारा, ऐसे ही ये गीत गाते हैं ना, क्योंकि यीशु की सलीब के जरिए से हमें जो है वो माफ किया गया है और हमने खुदा से इस निजात को हासिल किया है। खुदा का कलाम जो है जो ये किसी भी शख्स को बचाने के लिए दिया गया है, इसलिए दिया गया है, हमें बचाने के लिए दिया गया है। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो भी इस कलाम की अहमियत के बारे में जो है करंथियों की कलीसिया को बताता है। पहला करंथियों उसका 10वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ये बातें गौर से सुनिएगा, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और आखिरी जमाने वालों के लिए नसीहत के वास्ते लिखी गई। किसके लिए लिखी गई? नसीहत के लिए। इबरत किसकी थी? पुराने अहदनामे के लोग जो थे, बनी इस्राएल कौम के लोग, पुराने अहदनामे के लोगों पर ये वाक़या हुई, जो बातें पढ़ते हैं ना, ये वाक़या हुई। और आज जो हम इस दौर के लोग हैं, हमारे लिए नसीहत के वास्ते पुराना अहदनामा हमें दिया गया। किस लिए दिया गया? नसीहत के लिए, कि जिन लोगों ने खुदा पर बड़बड़ाया, बनी इस्राएल कौम के लोग खुदा पर बड़बड़ाते थे, वो बड़बड़ाने वाली कौम है। इसीलिए हम देखते हैं कि बार बार वो सजा पाते हैं, बार बार खुदा उनको सजा देता है, बार बार उनको गुलामी के अंदर झोंक दिया जाता है। और पूरी बाइबल पढ़ के देख लें, पुराने अहदनामे के अंदर बनी इस्राएल कौम जो है बहुत ज्यादा गुलामी की हालत में रही है। उसकी वजह क्या थी? जब वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते थे, खुदा की बातों को नहीं मानते थे, तो खुदा कोई बादशाह जो है उनके ऊपर मुसल्लत कर देता था और वो उनकी गुलामी में चले जाते थे। बेशुमार वाक़यात आप पढ़ लें, फिर आप देखें कि जब वो खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो खुदा ढेरों के हिसाब से लोगों को मार देता है। इस्राएल कौम के लोगों को खुदा हुक्म दूरी के बाद मार देता है। कलाम में लिखा है कि जब खुदा पहाड़ में मूसा को नजर आता है तो लोग जो थे उनको बताया गया था कि खुदा की हुजूरी पहाड़ के अंदर आ गई है। पहाड़ जो था वो बिल्कुल आग की तरह दहकने लगा। लोगों ने आगे बढ़कर उसको छूने की कोशिश की, तो क्या हुआ? कलाम में लिखा जमीन फटी और वो सारे के सारे उसके अंदर दफन हो गए। हुक्म अदूली
انہوں نے حکم عدولی کی اور یہ ہماری نصیحت کے واسطے لکھا گیا، ہمیں نصیحت کے لیے دیا گیا کہ پرانے عہد میں جب لوگ خدا کی حکم عدولی کرتے تھے تو پھر خدا کیسے ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا، خدا نے کیسا کیسا سلوک جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا، یہ ہمیں کس لیے دی گئی۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اور آگے لکھا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی، بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے کہیں گر نہ پڑے۔ ہلیلویا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ پر جو فخر کرتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہے جی، باقی سارے پیڑوں نے میں تو ٹھیک ہے، کلام میں لکھا تو وہ گر پڑے گا کسی وقت بھی، تو خبردار ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ جب ہم کس طرح سمجھتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ خبردار رہو کہ تم گر نہ پڑو، اس لیے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ تیموتھیوس کے نام خط میں ہم دیکھتے ہیں، تیموتھیوس کو بھی اس طرح کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے، اور جو خدا کے کلام کی جو بچانے والی قدرت ہے یہ جوانوں اور بوڑھوں کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے، بچوں کے لیے برابر ہے۔ جیسے جیسے ہم کلام کو پڑھتے ہیں یہ جوانوں کے لیے بھی کلام ہے، بوڑھوں کے لیے بھی کلام ہے، بچوں کے لیے کلام بھی ہے، تو یہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ کلام ہے، بچانے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اسی صورت میں جب کلام کو پڑھیں گے اس صورت میں ہم جو ہے وہ بچائے جائیں گے۔ اور زبور 119 کی نامیات میں لکھا ہے، ہم گیت بھی گاتے ہیں، زبور کے طور پر گاتے ہیں، جوان بلا کس طرح پاک رکھے گا اپنا راہ، اور نامیات میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھیں، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھیں۔ کیسے ہم جوانی کی عمر میں ہم کیسے اچھے پاک رہ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے۔ اگر ہم خدا کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ حالت میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور بزرگوں کے لیے لکھا گیا ہے، بزرگوں کی نجات پانے کے لیے جو کلام کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہاں پر اعمال 20 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث بھی دے سکتا ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ خدا کا کلام۔ خدا کے ساتھ ہم میراث کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اس کی انہیریٹنس میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم کلام پر عمل کرتے ہیں؟ یہ کلام اسی لیے دیا گیا ہے، یہ بائبل ہمیں اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس کی، کیونکہ اس کو پڑھنے سے ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں۔ ہم اپنا حصہ یسوع کے ساتھ جو ہے وراثت میں دے سکتے ہیں اگر ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ تو کلام جو ہے ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اور اس کلام کی لا علمی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے برباد ہو چکا تھا، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں، کلام کو پیچھے کر دیتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہم انتصاری کے ساتھ اسے حاصل کرتے ہیں تو یہ زندہ کلام ہمیں نجات دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس طرح جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تسلی پانے کے لیے بھی خدا کی طاقت جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ کس کے اندر موجود ہے؟ خدا کی طاقت کلام کے اندر موجود ہے، یہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی گھر میں مرگ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، بڑا وہاں پر جو ہے ماتم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی شخص کھڑا ہو کر چلو دعا کریں تو سارے لوگ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے تو آمین کہیں، لوگ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ کلام کے اندر تسلی پائی جاتی ہے، ہم اپنے اس دکھ کو بھول کر فوراً خدا کی تسلی کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب دعا کی جائے گی تو ہمیں تسلی ملے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کی حالت میں جو ہے ہمیں تسلی دی جائے گی، اس لیے ہم خدا کے کلام کو جو ہے پڑھتے ہیں، اور یہ امید مہیا کرتا ہے ہمیں خدا کا زندہ کلام جو ہے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے نامے کے اندر، صحیفوں کے اندر بھی جو ہے یہ امید ہمیں دی گئی تھی۔ اور رومیو 15 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی تھی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ امید کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام کے اندر سے ملتی ہے۔ کس چیز کی امید ہے ہمیں؟ ہم کس چیز کی امید رکھتے ہیں ابھی؟ ابدی زندگی کی امید۔ ایسے ہی جب یسوع آئے گا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ بادلوں میں لے جائے گا، یہی امید ہے نا ہماری۔ اور جب یسوع کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی امید ہے ہماری۔ اور یہ امید کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے زندہ کلام سے۔ جیسے ہم کلام کو پڑھتے ہیں
हमारी उम्मीद बढ़ती जाती है। अगर हम कलाम को पढ़ते नहीं हैं तो फिर हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो याद रखें कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर सब्र पैदा करता है और इससे उम्मीद जो है हमारी जिंदगी के अंदर वो पैदा होती है। और पुराना नामा हमें मसीह यीशु में ईमान उम्मीद की यकीन कहानी भी कराता है और हमें दिखाया गया है कि खुदा हमेशा अपने वादा पर जो है वो कायम रहता है, अपना वादा जो है वो पूरा करता है। नया नामा जो है इससे बढ़कर बयान करता है और हमें उम्मीद दिलाता है कि वो फजल हम पर होगा जब यीशु दोबारा इस दुनिया में आएगा। जब यीशु दुनिया में दोबारा आएगा तो हमारी जो उम्मीद है कि हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। वो हमें अपने साथ बादलों में ढांकर अपने साथ ले जाएगा। और पहला पत्र उसके पहले बाप की 13 आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। कब होने वाला है? सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जब यीशु दोबारा आएगा तो वो फजल हम पर होगा। हम उम्मीद रखे हुए बैठे हैं। आज हम मसीह पर ईमान रखते हैं, हम दुख भी सहते हैं, तकालीफ भी बर्दाश्त करते हैं, मुश्किलात भी सहते हैं। बेशुमार लोगों को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ देखते हैं कि मार दिया जाता है मसीह ईमान की वजह से, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है मसीह ईमान की वजह से। और उसकी वजह यह है कि हमें एक उम्मीद है और वो उम्मीद है अपनी जिंदगी की उम्मीद, यीशु की दूसरी आमद की उम्मीद। और उस वक्त पूरी होगी जब यीशु दोबारा दुनिया में आएगा। तो ये कलाम जो है हमारे अंदर उम्मीद को पैदा करता है और उस उम्मीद के जरिए से हम जो है इस इत्मीनान को जो है वो हासिल करते हैं। और आगे चलकर हम और देखते हैं कि इस तरह की जो इत्मीनान है जो वो सिर्फ हमें यीशु से मिलता है। और कलाम में लिखा है, ज़बूर 119 की 165 आयत में लिखा है, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले एक मुतमिन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं है। जो उसकी शरीयत पर अमल करते हैं वो कभी ठोकर नहीं खाते हैं, वो पूरा ईमान रखते हैं। अगर वो पूरे तौर पर ईमान रखते हैं तो फिर वो ठोकर नहीं खाते, शक नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? शक किया था। जब तक मैं उसके हाथों और पांव की जख्मों के अंदर अपनी उंगली डालकर ना देख लूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम यीशु की दुनिया से नहीं, ऐसे ही हुआ। यीशु ने क्या किया? जाहिर हो गया। उसने कहा थोमा आओ मेरे हाथों और पांव के अंदर जख्मों के निशानों में उंगली डाल कर दे और कम इत्तेकाद नहीं बल्कि बाइत्तेकाद पर। इसीलिए जो हमें ईमान रखने की जरूरत है कि ये उम्मीद जो है यीशु के आने से जो है पूरी होगी। और ये वो खुशी है जो हमें बरकत देती है, इस्तेकाम हमारे अंदर पैदा करती है और हमारी परवरिश करती है। ज़बूर पहला ज़बूर उसकी हम पहली 3 आयत पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी। पहला ज़बूर याद है किसी को? कौन सा ज़बूर है जो हम गाते हैं? ज़बूर ओ थान जो ना मानता है सदा शरीर में। ये कलाम के अंदर पहला ज़बूर पहली आयत और उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है, जो वक्त पर फलता और जिसका पत्ता मुरझाता नहीं है। तो वो जो भी करे वो बार आवर होगा। हालेलुया। वो फलदार होगा। कौन? जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, जो शरीयत पर अमल करता है। हज़रत यहोशुआ को जब खुदा ने कलाम दिया, जब उसको चुना गया लीडर के तौर पर, यहोशुआ के बारे में जानते हैं? कितने लोग यहोशुआ को जानते हैं? ईमान के साथ कहिएगा। यहोशुआ कौन था? जोशुआ नए अदम में था, पुराने अदम में? पुराने अदम में। कौन था? हजरत मूसा का असिस्टेंट था। हजरत मूसा जो है बाइबल के उसका असिस्टेंट है। और जब हजरत मूसा की वफात हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने यहोशुआ को चुन लिया। जब यहोशुआ को चुना तो खुदा ने कहा, शरीयत की किताब तेरे मुंह से हरगिज ना हटे। क्या लिखा है? शरीयत की किताब तेरे मुंह से हरगिज ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। जब दिन और रात हम ध्यान करते हैं तो फिर खुदा बरकत देता है। हमने पढ़ी है याद ज़बूर, पहले ज़बूर की पहली 2 से 3 आयत में लिखा है कि वो कोई भी काम करता
करता है, अगर वो शरीयत पर अमल करता है या वो शरीयत को सामने रखता है, खुदा के कलाम को सामने रखता है, तो उसके सारे काम जो हैं उनमें से कोई भी काम जो है उसमें वो नाकाम नहीं होगा, बल्कि हर काम में उसको कामयाबी हासिल होगी। हालेलुया। इसीलिए कि अगर वो शरीयत पर अमल करता है। हज़रत मूसा जो है वो शरीयत खुदा ने उसको दी, कलाम में लिखा उसकी उम्र 120 साल उम्र हुई। कितनी उम्र हुई? 120 साल की उम्र में वो वफात पाता है, लेकिन उसकी वफात का कहीं जिक्र नहीं है। खुदा ने उसको पहाड़ पर बुला लिया और उसके बाद उसकी कब्र का भी पता नहीं कि वो मरा था कि नहीं। कहते हैं कि खुदा ने उसको जिंदा उठा लिया था, लेकिन बाइबल मुकद्दस में उसका कोई जिक्र नहीं है कि वो वहाँ पर मर गया था। अगर मरा होता तो उसकी लाश जो है वहाँ पर मिलती, लेकिन हम इस बात पर भी कुछ थियोलॉजियन जो है वो समझते हैं कि हज़रत मूसा को खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, इसलिए उसकी कब्र जो है मौजूद नहीं है। हज़रत मूसा को जब उठाया गया उसकी उम्र 120 साल थी और कलाम में वो पूरी उम्र का ज़हीक और बूढ़ा शख्स था। ना तो उसकी नज़र खराब हुई थी और ना ही उसकी ताकत खत्म हुई थी। पूरे तौर पर उसकी जो ताकत थी वो जवानी की उम्र वाली ताकत जो थी उसके अंदर मौजूद थी। उसकी आंख जो थी, बीनाई जो थी, वो भी बिल्कुल ठीक थी जब खुदा के कलाम पर वो अमल करता है। ऐसे ही अगर हम खुदा कलाम पर अमल करते हैं तो फिर वो हमारी जिंदगी में जो है बरकत को बरसाता है। और अभी हमने पढ़ा है कि सुबह शाम जो है तुझे इसी का ध्यान रहे। आज के कलाम में जो हमने सीखा है, कलाम में बार बार ये सिखाता है कि ये कलाम हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इसको पढ़ें। किस लिए दिया गया है? ये पढ़ने के लिए। कितने लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया? आमीन से पता चलेगा। ये पढ़ने के लिए दिया गया। जब हम इसको ध्यान करने का मतलब इसको पढ़ना, दिन और रात जो इसी का ध्यान रहे मतलब इसको पढ़ना। जब हम इसको पढ़ते हैं तो फिर खुदा हमारे कामों में बरकत देता है, फिर खुदा हमारे घरानों को बरकत देता है, फिर खुदा हमारी कमाई को बरकत देता है, फिर खुदा हमारी हर एक चीज में बरकत देता है। कलाम में लिखा है जब तू बाहर जाएगा तो तू मुबारक होगा, घर के अंदर आएगा तो तू मुबारक होगा, तेरे खाने का आटे की जो मटकी है वो मुबारक होगी, उस पर मैं बरकत दूंगा, तेल की कुप्पी पर बरकत, यानी तेरे घराने के अंदर जो चीजें हैं उनको बरकत दूंगा। तू बाहर भी बाइज्जत होगा और जब घर में आएगा तो इज्जतदार होगा। उसी सूरत में जब ये खुदा का कलाम तेरे सामने होगा। आज हमने सीखा है कि खुदा का कलाम इसीलिए दिया गया है ताकि हम इसको पढ़ें। इसलिए नहीं दिया गया कि इसको अच्छी तरह कपड़े में लपेटें और ऊंची जगह पर उसको जाकर रख दें जैसे हमारे मुसलमान भाई करते हैं। ये पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, आपको वॉइस में जो है वो बाइबल मिल जाती है, कंप्लीट बाइबल, उसको आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। दुनिया की तमाम ज़ुबानों में ये किताब मौजूद है। अगर आपको पढ़ने की दिक्कत है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में जो है उसको सुन सकते हैं। अब खुदा ने इस इंटरनेट के ज़रिए से कलाम को दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुँचाने का इंतज़ाम किया है। तो जो आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने तो पढ़ना नहीं सीखा इसलिए मैं पढ़ा नहीं। ऐसे ही कलाम किससे पैदा होता है? सुनने से ईमान पैदा होता है। तो इसलिए हमें सुनने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ें, अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप सुन सकते हैं, तो आप सुनकर भी ईमान आपके अंदर पैदा होता है। इसलिए जो आज हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है कि खुदा आपको तौफीक अता करे और हम सबको ये तौफीक अता करे ताकि हम इस कलाम को पढ़ें और इस पर कामल ईमान लाएं और खुदा की बरकत को हासिल करें जो हमारी जिंदगी में देना चाहता है। अपने सरों को झुकाएंगे। बहरमत के खालिक और मालिक ज़िंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार आज के दिन के लिए तूने दिया, इस कलाम के लिए तूने बख्शा। खुदा इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, हमें इस लायक करके हम पूरे तौर पर खुदा तेरे इस कलाम को हमेशा खुदा अपने सामने रख सकें, अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पर खुदा इस पर अमल करने वाले बने। हमें खुदा ये ईमान अता कर, पाक रूह का मसा अता कर, ताकि पाक रूह की रहनुमाई के साथ हम इस कलाम को जान सकें। खुदा हमें अक्ल और दनाई बख्श ताकि हम तेरी उस अक्ल और दनाई के बायस खुदा जो तेरे कलाम में लिखा है कि तू हर किसी को मुफ्त में देता है। अगर तुम्हारे पास अक्ल की कमी है तो मांगो तो वो तुम्हें मुफ्त देगा। आज खुदा तो हम सबको ये अक्ल और दनाई अता कर ताकि हम तेरे कलाम को अक्ल और दनाई के साथ पढ़ सकें, सुन सकें और अपने अंदर उसी ईमान को पैदा करें जिसका वादा तूने किया है आसमानी बाप, ताकि हम इस कलाम पर अमल करने वाले बने और तेरे नाम को जलाल दे सकें। तो हमारी जिंदगियों में इस कलाम की तमाम बरकत शामिल कर, ताकि जो भी लोग खुदा इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जो इस जमात में हैं, इनको बरकत दे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी बरकत दे, और जो कुछ देर बाद उसको सुनेंगे उन सब के लिए तेरी बरकत मांग लेते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।
हम सब खुदाओं का और पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने खूबसूरत कलाम हम तक पेश किया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदाओं के कलाम के लिए। वक्त है कि हम अपने हदिये नज़ारे खुदाओं के हुज़ूर पेश करें। फाइल में से गीत गाएंगे। शेर बब्बर यसु शेर बब्बर। मिलके गाइएगा, तालियां बजाइएगा तारीफ के लिए। हम सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इसी दौरान हदीये नज़ारे खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, जिसकी भारी बड़ी है आगे पीछे को खबर, जिसकी भारी बड़ी है आगे पीछे को खबर, शेर बबर शेर बबर, शेर बबर शेर बबर, मोर को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोर को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है बोलने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है बोलने वाला, तू है शान हमारी और हमारा फखर, तू है शान हमारी और हमारा फखर, शेर बबर शेर बबर, शेर बबर शेर बबर, मौत को जिसने हराया, कर झगड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, कर झगड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवार लहू को इस नाज़री ने गिराया, गुनाह की दीवार लहू को इस नाज़री ने गिराया, रूह में जो खुदा है बदन में बना बशर, रूह में जो खुदा है बदन
करूँगा कि आए अगले नज़ारे की दुआ करें। आए हम सर को झुकाएंगे। इस साल हदी नजराने के लिए जो खुदा के लोगों ने उसके दिए हुए में से दिया है खुदा की हजूरी में रखेंगे। कदूस मेहरबान खुदा नस्मान ज़मीन के सदा खालिक और मालिक शुक्रगुज़ार हैं दिल की गहराइयों से आज के दिन के लिए खुदा तूने बख्शा और तूने अता किया। इस हदी और नजराने के लिए खास तौर पर तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया है। आसमानी बाप के हदी नजराने को कबूल कर और जहाँ जहाँ से खुदा तेरे नाम के लिए खुदा इकट्ठा हुआ उन तमाम घरानों को बरकत दे, उनकी कमाई में बरकत डाल और जहाँ कहीं इस्तेमाल किया जाए खुदा सारे कामों में तू बरकत दे और खुदा तेरे नाम की इज्जत जलाल पाए। इस सारे हज़रत जमात को बरकत दे और खुदा हमें तौफीक अता करके हम पूरे तौर पर खुदा तेरी हुज़ूरी में ईमान के साथ तेरे कलाम को पढ़कर तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। तेरी मर्ज़ी आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो हमारे उसके की आँच मिले कि बादशाह हमेशा दे रहे हैं। आमीन। और हमारे खुदा का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक और रफ़ाक़त और शराकत इस सारी हज़रत जमात के साथ हमारे ख़ानदानों के साथ उनके पाकिस्तान के साथ और कुल दुनिया के तमाम लोगों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। तशरीफ़ रखिएगा। बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं आज के इस दिन के लिए उसने हमारी ज़िंदगी में अता किया। ज़ोरदार तालियों से हम खुदा के नाम को जलाल देंगे इस सारी इबादत के लिए और हमें सेहत तंदुरुस्ती के लिए जिसके लिए खुदा ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी ताकि हम उसकी हुज़ूरी में आ सकें। आज हम शुक्र करते हैं खुदा का इस सारे फजल के लिए कि इस मुश्किल घड़ी में भी उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत करें। अपने आप को खुदा के नाम के लिए हमेशा तैयार रखें ईमान के साथ और यकीन के साथ। क्योंकि ये वक्त है मुश्किल घड़ी है दुनिया के अंदर इस वक्त तक जो है 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं। इस कोरोना के बायस बेशुमार लोग जो हैं अस्पतालों के अंदर हैं। पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन है। हमारे पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करें कि उस मुल्क में भी अब सूरत हाल बड़ी ख़राब है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग जो है उनकी डेथ हो रही है और इसी तरह से 5 से 6 हज़ार के करीब लोग जो हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनके लिए हम दुआ करें। पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। कोरिया में भी खास तौर पर दुआ करें कि यहाँ पर भी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 600-700 के दरमियान एवरीडे जो है यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं। कोशिश करें अपने मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों पर दवाई जो है वो हम जो लगाते हैं उसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ज़्यादा तादाद में जहाँ पर लोग इकट्ठे हैं वहाँ पर ना जाएं। अपने आप को जो है सेव रखें। सोशल डिस्टेंस जो है उसको बढ़ाएं क्योंकि अब जो है वो और ज़्यादा सोशल डिस्टेंस कर दिया गया है। कोशिश करें कि जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग है वहाँ पर ना जाएं और अपने आप को जो है वो इस मूजी मर्ज़ से जो है महफूज रखें। दूसरों के लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। खुदा हम सबको जो है इस मुश्किल से जो है इस मुश्किल घड़ी से जो बचा कर रखें। आने वाले इतवार में हम सीखेंगे हमारी सीरीज़ का जो तीसरा सरमन है वो है हमें यीशु मसीह की क्यों ज़रूरत है। पहले हमने खुदा बाप के बारे में पढ़ा कि उसकी हमें क्यों ज़रूरत है। आज हमने कलाम मुक़द्दस के बारे में पढ़ा कि हमें बाइबल मुक़द्दस की क्यों ज़रूरत होती है। आने वाले इतवार में हम सीखेंगे हमें यीशु मसीह की क्यों ज़रूरत है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। इस पर हम आने वाले इतवार को जो है वो गौर करेंगे कलाम को सुनेंगे। आने वाला इतवार जो है भाई फाज जो है वो प्रेजाइडर हैं और फ्लोरेंस जावेद जो है उनकी तिलावत है तो वो भी इसको नोट कर लें कि आने वाले इतवार में जो है आपकी तिलावत है और आपकी प्रेजेंटिंग है। बहुत आप सबको बरकत दें। शुक्रिया।